Welcome back to F3 Health and Beauty Tips. This is Satvinder Kaur and today I'm going to show you how to make rose water at home, which is very simple. Rose water is an excellent ingredient for beauty recipes for all types of skin because of its soothing properties. It has natural cooling, antiseptic, anti-inflammatory and antioxidant benefits. You can use rose water directly on your skin as a skin toner. It glows your skin and also nourishes your skin. To make your own rose water at home, all you need is some rose petals, ice cubes and water. Put a stand inside the pan and add all the rose petals in it. Push the petals to the sides of the pan. Now add enough water to the pan to cover all the rose petals and place a bowl on the stand. Cover the pan with its lid upside down. Place few ice cubes on the inverted lid and let the solution simmer on medium-low heat for about 20 to 30 minutes. If the ice melts, you can add more ice cubes to it. After 20 to 30 minutes, when the rose petals turns white, turn off the heat, remove the bowl from the pot and allow it to cool. Your rose water is ready through the process of condensation. Let it cool and then transfer it into a sterile bottle. You can now use your own pure homemade rose water. Today I am going to make a simple blackhead scrub. Squeezing blackheads is not the best way to get rid of blackheads. It damages your skin. There are many products available in the market to treat blackheads. And if you have tried all of them and nothing has worked yet, here is a simple homemade blackhead scrub which will be easily made at home and also very effective and inexpensive. Take half spoon of baking soda and little milk and make a thick paste. See that the paste is not too watery. This is the perfect consistency. The small granules of the soda exfoliates the skin while the lactic acid present in the milk clears the pores and makes your skin clean and clear. Apply this paste in a circular motion on your skin or on your blackheads and leave it for 10 to 15 minutes and then rinse it off. You can do this twice or thrice a week to get rid of blackheads. Also keep your skin clean all the time. So this was a very simple homemade blackhead scrub. आज मैं आपको बताने जा रही हूँ how to grow wheat grass at home. Wheat grass उगाना बहुत ही सिंपल है. आपको लेने हैं थोड़े से एक मुट्ठी गेहूं के दाने, उसे वॉश कर लीजिए और उसे पानी में भिगोकर कम से कम एक दिन के लिए यूं ही रख दीजिए. फिर नेक्स्ट डे आप उसे सारा पानी ड्रेन कर लीजिए और एक पतले से कपड़े के अंदर डालकर पानी को एक्सट्रैक्ट, जो पानी सारा सोख हो जाएगा उसे आप कपड़े से ढककर उसी कंटेनर के अंदर रख दीजिए अगेन फॉर 1 more डे. थर्ड डे यू विल नोटिस उसके अंदर से स्प्राउट्स आ गए हैं वीट के. देन वो स्प्राउट्स को आप मिट्टी में डिग कीजिए और वो स्प्राउट्स डाल दीजिए, उसके ऊपर फिर से मिट्टी डाल दीजिए एंड पुट वाटर और उसे एक ऐसी जगह पे रखिए जहाँ इनफ सनलाइट मिलता हो उसे एंड वाटर इट डेली. 5-6 दिनों के बाद आप देखेंगे कि जो ग्रीन ग्रास है 5-6 इंचेस तक उग चुका है. तब आप वो ग्रीन ग्रास आसानी से काट सकते हैं और उसे आप यूज़ कर सकते हैं फॉर योर व्हीट ग्रास जूस. आई विल टेल यू हाउ टू मेक व्हीट ग्रास जूस. इट इज़ वेरी सिंपल. जब वो ग्रीन ग्रास उग जाती है गेहूँ की, उसे आप काट लीजिए, वॉश कर लीजिए एंड देन ब्लेंडर में थोड़ा सा पानी डाल के उसे अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए. एंड देन व्हेन इट इज़ ब्लेंडेड परफेक्टली, आप उसे छान लीजिए एक ग्लास में और आपका व्हीट ग्रास जूस इज़ रेडी. सो व्हीट ग्रास उगाना बहुत ही सिंपल है. थोड़ी सी मेहनत कीजिए और अपने घर में ही ये उगाइए और इसके बहुत से फ़ायदे हैं. टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू मेक एलोवेरा जूस. एलोवेरा इज़ अ ग्रेट ingredient for your skin as well as for your overall health. It is rich in nutrients and has anti-inflammatory, antibacterial and antifungal properties. It eliminates toxins from the body and aids weight loss. It is also good for your heart
and is considered good for those who are suffering from constipation. So now I'm going to tell you how to make aloe vera juice. Extract the gel from the leaf. Put 2 tablespoons of gel in the blender. Blend it to thin the gel. Once the gel is thin, add orange juice to it and blend it again. Now add little water and blend it again. Your aloe vera juice is ready to use. Blend this mixture for around 1 minute. Your aloe vera juice is ready. Pour it into the glass and just enjoy your juice. Today I am going to make a detox water. Detoxification refers to elimination of toxins from our body. We are exposed to various chemicals and biochemicals toxins which are present in food, water and environment and are loaded with heavy metals. So I am going to make a ginger lemon detox water which will help you in removing all the toxins from the body and avoid health problems. And for that you need 2 lemons, 2 spoons of grated ginger and for around 2 glasses of water. So let us boil some water in a pan. The water is hot enough. Let's put this grated ginger. And again let it boil for 5 minutes. The water is boiling. Let's switch off the flame and we will squeeze the lemon juice. We'll take all the lemons. Lemon juice is ready. So let us pour this in the jug. Now we add some cold water. Around half a jug, and then the ginger water. So your ginger lemon detox water is ready. आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ सेहत से भरा हुआ सोया सूप। जी हाँ, सोया सूप सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि आपके शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं और इसके अंदर प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है। कहते हैं कि रात को खाना बहुत हल्का खाना चाहिए। खाना तो आप खा लेते हैं लेकिन उसके बाद आपको थोड़ी थोड़ी सी भूख महसूस होती है और इसी भूख को पूरा करने के लिए आप रात में डिनर में सोया सूप बना सकते हैं और इसकी बहुत आसान सी विधि है, बस मैं वही आपको बताऊंगी। सोया सूप बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बाउल में सोया चंक्स, 1 चम्मच बटर, स्वाद के अनुसार नमक और मिर्ची। सबसे पहले आप सोया चंक्स को गर्म पानी में डालें और 15 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद उन्हें अच्छे से निचोड़ कर निकाल लीजिए। एक पैन लीजिए, उसके अंदर बटर डालिए, सोया चंक्स डालिए और उन्हें हल्के हाथ से फ्राई करिए। फ्राई करने के बाद उसमें मिक्स वेजिटेबल डालिए, थोड़ी देर उन्हें फ्राई करिए। फ्राई करने के बाद उसमें आधा कप पानी डालें और कुछ देर तक उबलने के लिए छोड़ दें। जब उनके अंदर अच्छे से उबाल आ जाए तो उसमें ऊपर से नमक डालिए और मिर्च डालिए। तो देखिए, इतना सा करने के बाद ही आपका सोया सूप तैयार। अगर आपको और भी टेस्ट इसमें लेकर आना है तो ऊपर से थोड़ा सा नींबू निचोड़ दीजिए और आपका हेल्दी सोया सूप पीने के लिए एकदम तैयार हो जाएगा, रेडी टू सर्व। तो देखा आपने कितना आसान था सोया सूप बनाना। ये जितना पीने में टेस्टी है उतना ही आपकी सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। आज मैं आपको ऐसा सूप बनाना सिखा रही हूँ जो कि आपके शरीर के अंदर के वात दोषों को दूर करेगा, साथ ही आपकी सेहत के लिए वो पूर्ण रूप से संतुलित आहार भी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी उस सूप का नाम। उस सूप का नाम है मूंग की दाल और पालक का सूप, जिसमें कि भरपूर मात्रा में प्रोटीन है और आयरन भी है। तो इस सूप को कैसे बनाना है, उसकी विधि क्या है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे वो जान लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए 2 चम्मच जैतून का तेल, 1 चम्मच ताजी अदरक, 2 लहसुन की कलियां, 1 चम्मच पिसी काली मिर्च, 1 चुटकी रेड चिली फ्लैक्स, 2 चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच दालचीनी पाउडर, 1.5 चम्मच नींबू का रस,
2 चम्मच कद्दू के बीज और अखरोट पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, 1 कप कटी हुई प्याज, 1.5 कप कटा हुआ हरा धनिया, 1 कप पीली धुली हुई मूंग की दाल, 1 कप कटा हुआ पालक, 1.5 कप चौकोर कटी हुई गाजर, 4 कप पानी लीजिए और इसमें आप वेजिटेबल स्टॉक का भी प्रयोग कर सकते हैं। बनाने की विधि, 1 बड़ा बाउल लीजिए, उसमें जैतून का तेल डालें, उसमें जीरा डालें, उसके बाद कटी हुई सारी सब्जियां उसके अंदर डाल दें, 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें। हाँ, पालक इसमें पहले ना डालें, बाद में डालें। पालक डालने के बाद इसे धीमी आंच पर बनने के लिए छोड़ दें। अब अंत में इसमें मूंग की दाल डालें और कुछ देर के लिए पकने के लिए छोड़ दें। पकने के बाद आप इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दें, उसके बाद मिक्सी में डालकर ग्राइंड कर लें। अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो इसमें आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। सूप आपका बनकर तैयार है। इसमें ऊपर से थोड़ा सा नींबू डालिए और गार्निश करने के लिए हरा धनिया और टमाटर डालिए। देखिए इसका टेस्ट कितना अच्छा हो जाता है। इस तरह से आपका सूप बनकर तैयार हो जाएगा। ये सूप पीने में जितना टेस्टी है उतना ही आपकी हेल्थ के लिए बहुत लाभदायक है। आप इसको लंच में भी ले सकते हैं क्योंकि पालक और मूंग की दाल एक बैलेंस डाइट भी है। लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि आप इस सूप को रात को ना पिएं क्योंकि किसी भी तरह की दाल रात को गैस बनाती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मिलूंगी कुछ लजीज और हेल्दी टिप्स के साथ। थैंक यू।